Hello and good morning viewers. Apni han saize Hornbill TV laga Morning Pulse Bulletin. Aji laga khobor indiga janai dia ase. Convener of Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomi laga convener bra lead kurigina 7 member delegation bra Ministry of Home Affairs lugo May 27, 2025 day exclusive meeting thagibole ase kohina Kokomi convener Kuraijam Ato bra media lugo gutagura homoi janai dise. Idula meeting du May 3 day historic Manipur People's Convention state hagya homoi resolution lo apode aim kurina initiate Kokomi is going to have an official meeting with the Ministry of Home Affairs team on 27th of this month, and tomorrow a 7-member delegations headed by the convener of Kokomi, myself, and 7 members is going to head for the New Delhi to hold the meeting. And in this meeting, actually we are supposed to raise the issue of the prolonged Manipur crisis situations and the resolutions adopted in the convention. However, because of the sudden outburst of this incident of the unfortunate Gwaltavi incidents where the state of Manipur has been insulted and undermined by the state administrators, we are going to raise this issue. Our demand for the apology from the governor as well as necessary action including the resignations demand for the top administrators is going to be raised in the meeting. And we are going to pursue with the ministry officials so that some kind of acceptable steps be taken up from the side of the government of India, and our resolutions from the convention representing the people of Manipur will be raised to the top leaders of the country, which may be the Prime Minister or the Home Minister or both of them. And this is non-negotiable, and we will try to initiate certain procedures as to how we are going to, fulfill the demand of the people to raise and press the demand for these conventions resolutions. Therefore, this meeting is very crucial, and we are going to raise all necessary issues related with the current ongoing incident as well as the long pending Manipur crisis situations, resolutions taken on the public conventions. Tamu, about this planned meeting, a scheduled meeting, whether it is going to be solely with the government of India or with the Kuki groups also? No, this meeting is going to be an exclusive meeting between the representatives of Kokomi, representing the people of Manipur, and the government of India. There is no any other party going to involve. Any precondition for talking with Kuki, Tamu? No, we don't have any condition or precondition. For now, there is no point of talking with them. We already had a resolution in the convention that for now, it is only the government of India who is responsible for this entire crisis, and we will engage with the government of India until and unless some kind of positive outcomes comes out. We are not going to discuss with any other stakeholders for now. How many protesters were injured today? Today, we have been reported that 3 to 4 protesters have been injured. BJP-led NDA Chief Minister and Deputy Chief Minister laga meeting thakya bichire BJP National President and Union Minister JP Nanda Prakushi Prime Minister Narendra Modi la leadership under day edu conclave to thakya ase tade 20 CM and 18 Deputy CM pra attend kurise edu laga meeting day duita resolutions pass kurise kogina natabra janai dishe मेघालय के मुख्यमंत्री कर्नाड संगमा जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, विनय सहस्त्रबुद्धे जी, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सीएम कॉन्क्लेव हुई। हम सब जानते हैं कि समय समय पर हमारे एनडीए के चीफ मिनिस्टर्स और डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स वो सीएम कॉन्क्लेव में एकत्र आते हैं, जिसकी अध्यक्षता हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, और हम विकसित भारत के संकल्प को किस तरीके से हम आगे बढ़ा रहे हैं उस पर चर्चा होती है। इस बैठक में हमारे 20 मुख्यमंत्री और 18 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स ये उपस्थित रहे। इस कॉन्क्लेव में 2 प्रस्ताव पारित हुए। एक प्रस्ताव तो ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जो हमारे फौज के, हमारे आर्मी के जवान्स ने जो देश की सेवा की है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई, और
हमारी आर्मी है जिसने तो अपना पराक्रम दिखाया है, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा हुई है। तो ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर में प्रधानमंत्री मोदी जी की नेतृत्व क्षमता, सशक्त भारत, समर्थवान भारत और आत्मनिर्भर भारत कैसे बन रहा है, इसकी उस प्रस्ताव में चर्चा है। और एक तरीके से कहा जाए तो जिस प्रिसिशन के साथ हमारी आर्मी ने पाकिस्तान के में टेररिस्ट एक्टिविटीज को और टेररिज्म को जो आघात पहुंचाया, जो वहां अटैक किया, उसकी मारक क्षमता और मारक क्षमता के साथ साथ एग्जैक्टनेस, प्रिसिशन, इस बात की भी चर्चा हुई है। आपको प्रस्ताव की कॉपी मिल जाएगी। साथ ही साथ जातिगत जनगणना, इस जातिगत जनगणना के विषय पर जिसको भारत की कैबिनेट में मोदी जी के नेतृत्व में स्वीकृति दी है, और ये हमारी कल्पना शुरू से थी और हमारे बिहार की सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार जिसने सबसे पहले इसका प्रस्ताव लाया था, उसको भी ध्यान में रखते हुए और यह जातिगत जनगणना पर भी प्रस्ताव पारित हुआ और सभी लोगों ने इसको जहां इसकी सहमति के साथ साथ जो मोदी जी का निर्णय हुआ है उसकी प्रशंसा के साथ साथ साधुवाद देने का काम इस प्रस्ताव में हुआ है। यहां मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव के माध्यम से हमने स्पष्ट किया है कि हम जातिगत राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित जो छूट गए हैं उनको मुख्य धारा में समावेश करना, जो भी जिस तरीके से छूटा हुआ व्यक्ति है उसको मुख्य धारा में समावेश करना, यह समाज की आवश्यकता है। और जातिगत जनगणना के माध्यम से हम इसको देखते हैं और इसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जहां कहा कि ये सेना का शौर्य है, वहीं उन्होंने इस बात का भी बल दिया कि भारत को हमें तीव्र गति से विकसित भी बनाना है, सशक्त रखना है, सामर्थ्यवान बनाना है और इसके साथ साथ हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। इस पर हमको ध्यान देने की जरूरत है। हम लोगों ने यहाँ पर UMB Sanjay Chabra lead Korea all party delegation ba Korea la leaders kan luko interaction thagya bichede Rajiv Mahajan kun South Korea de bishi deribra thayase taibra olop din hwa development opor satisfaction janaise aro India bra inika action loa do thik thakishe koina koise. So I've been in very close to the incidents which happened back home in India. 7/7, which happened in Mumbai way back in, if I'm not wrong, 2007. I could have been on that. I was delayed in office and I could have been on the train that actually had the bomb blast in it. Similarly for 26/11. I actually had to leave office a bit early. Had I gotten late, I would have been in the midst of it one way or the other. And so I can only thank Almighty that I got saved, but there are many others who've not been lucky. I've had friends who have been a part of those incidents as well, and for no fault of theirs, and that's the most important thing. They've done nothing, and therefore, I think as a country, I'm very happy that we are fighting back. And as one of the members of Parliament said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. I would say a limb for a limb as well. So we got to give it back. I can't say. I mean, time will tell. I think one of the big challenges that we've had as a country has been the following. The politicians have not spoken in one voice so far. And so when, the incidents in October 2023 happened in Israel, the ex-Prime Minister Naftali Bennett made a statement to the press saying that, even though I'm in the opposition, I'm going to fight, and I'm going to fight this war as a citizen of the country. And I see that kind of a spirit today. So I hope that continues. But more important than that is,
the narrative that comes out from the political class and in the parliament and elsewhere as well has to be that of, we stand by India and we have to respond back. I think if this is what the future holds, then I think it's a good start. Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav Kushiki June 5-day Environment Day logo Jal Ganga Sangrashan Abhiyan Bese Idulaga Din Bishi important Obulese. State Bra Bishi Sal Environment Preserve Kurigina Ahiase Kun PM Modi Laga Sorkar and today Bishi achieve Hoiginase. लगे लो कैमरा अरे लगा लो 5 जून जल गंगा संरक्षण अभियान के लिए महत्वपूर्ण दिन रहेगा जब हमारी गंगा दशमी के आधार पर पूरे प्रदेश के अंदर हम अभियान चला रहे हैं और पर्यावरण दिवस भी 5 जून का है। इस समय राज्य सरकार पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमारी तमाम कुएं बावड़ी जितने जल संरचनाएं हैं तालाब हैं वैसे तो हम बीते शिवरात्रि से लगा करके गुड़ी पड़वा से कार्यक्रम चला रहे हैं, लेकिन चूंकि पर्यावरण दिवस है तो विशेष तौर पर सरकार ध्यान देगी। 9 जून को यशस्वी प्रधानमंत्री के 11 वर्ष हो रहे हैं। ऐसे में लोकतांत्रिक दृष्टि से वैसे तो 47 के बाद से भारत की कई सरकारें बनी हैं, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं इस समय 11 साल का टेन्योर मैं मान के चलता हूँ कि सर्वाधिक रूप से प्रभावी भी है। जब पुनः 40 साल बाद एक दल की सरकार बनने का युग लौटा है, उसके पहले एकमात्र सरकार मान के चलो कि अगर राजीव गांधी की छोड़ दें उसके पहले भी बहुत मुश्किल जा रही थी। लेकिन मैं यशस्वी प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहूँगा जिनके नेतृत्व में न केवल सरकार बनी बल्कि ऐतिहासिक निर्णय हुए। उन निर्णयों में चाहे हमारे लिए 3 तलाक के सुप्रीम कोर्ट के 1984 के निर्णय को पुनः समाज के बीच में लागू करना, भगवान श्री राम के मंदिर का लोकार्पण का मसला बगैर कोई झंझट के पूरे देश में हिंदू मुसलमान सबसे मिलकर के लागू कराना, पाकिस्तान पर एक बार नहीं 3 बार एयर स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक और अभी की जो स्ट्राइक हुई है ये अपने दुश्मनों से निपटने का भारत का बदलते दौर का भारत हमने सबने देखा है। चाइना के साथ बॉर्डर पर खड़े होकर के हमारी सीमा की रक्षा भी करना और डोकलाम से लेकर के भूटान जैसे पड़ोसी को भी चाइना के साथ होने वाली घटना में भारत की भूमिका का बड़ा रोल अदा करना, जीएसटी लागू करने से लेकर के कई सारे बदलाव बदलते दौर में भारत 11वें नंबर से आज 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था बदला। 25 तारीख को आपातकाल का काला दिवस के नाते से तो लोकतंत्र के लिए सच्चे अर्थों में संविधान के लिए सुप्रीम कोर्ट को जो कांग्रेस ने मजाक बनाया था, ऐसे में जनता ने आपातकाल का बदला लेकर जो निर्णय किया वो अद्भुत था। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काला दिवस का ये जो खास करके पूरे देश के स्मरण में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये जून के महीने के 3 बड़े कार्यक्रम अपने अपने ढंग से बड़े स्तर पर मनाए जाएंगे। इसके अलावा कई सारे कार्यक्रम जैसे कल नरसिंहपुर में हमारा किसान आधारित बड़ा कार्यक्रम होने वाला है जिसमें उपराष्ट्रपति महामहिम श्रीमान धनखड़ जी आ रहे हैं, जो हमारी कृषि आधारित व्यवस्थाओं के लिए, कृषि यंत्रों के लिए, कृषि नए तकनीक से प्राकृतिक खेती करने के लिए, खेती की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए नए नए यंत्रों के लोकार्पण की दृष्टि से, खेती से कृषि उद्योग समागम, उपज से कारखाना और कारखाने से रोजगार, ये जो फसल को संवर्धित करने के साथ साथ उसकी ठीक उपार्जन करते हुए किसानों को कीमत मिले, उत्पादन क्षमता बढ़े, मध्य प्रदेश में प्रसंस्करण इकाइयों की क्षमता बढ़े। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि किसानों के लिए खास करके ये साल हमारा उद्योग और रोजगार वर्ष में बड़ी सौगात मिले। ऐसे कई कार्यक्रम हो रहे हैं। मेरी अपनी ओर से बधाई। 5টা fragile economies majure India be ase kundubra top 4 global economies se first obole uthi ase idula credit to Prime Minister Narendra Modi ke dibole lage gushe Union Minister Jitendra Singh bra PM Modi bra desh laga manusup ke viksit Bharat duloina jabo karne encourage kore thai ase। ये सबसे पहले मैं कहूँगा बड़ा सुखद समाचार है। धन्यवाद करना है प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिस दूरअंदेशी के साथ पिछले 10-11 वर्षों से एक योजनाबद्ध तरीके के साथ भारत विकास यात्रा पर निकला है, ये उसी का परिणाम है। हम आज याद कीजिएगा, हम फ्रेजाइल 5 कहा जाता था और दुनिया भर में इस बात को लेकर के व्यंग किया जाता था कि इंडिया इज अमंग फ्रेजाइल 5। देखते ही देखते हम टॉप 5 में आए, अब 4 में, और धीरे धीरे
उस अव्वल दर्जे में जिसका नाम 2047 का भारत होगा, जिसे हम विकसित भारत भी कहते हैं। जैसे मोदी जी ने कहा कि हर नागरिक का ये दायित्व बनता है कि अपनी यथाशक्ति यथाक्षमता उसके निर्माण में अपना योगदान दे। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी इस उपलब्धि के पीछे का राज और कारण ये रहा कि पहली बार मोदी जी ने देश को जागरूक कराया टेक्नोलॉजी के महत्व को लेकर कि आज के बाद विश्व में जितना भी विकास होगा, जितना भी तरक्की होगी, वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी। और अगर हमें अपनी भौगोलिक भूमिका बनानी है, ग्लोबल प्लेयर बनना है, तो ये हमारे लिए लाजिम है, अनिवार्य है कि हम ग्लोबल बेंचमार्क्स पर पूरे उतरे, ग्लोबल पैरामीटर्स पर पूरे उतरे और हमारी स्ट्रेटेजीज भी पूरी हो। और उसी को लेकर के बहुत ही क्रांतिकारी निर्णय लिए गए। जैसे उदाहरण के तौर पर अंतरिक्ष को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया। कभी आपने सोचा था कि न्यूक्लियर सेक्टर को भी प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोला जाएगा? इस साल के बजट में वो निर्णय भी संभव हुआ, और वो तभी होता है जबकि ऊपर जो हमारे नीति निर्धारक है, जो हमारा राजनीतिक नेतृत्व है, उसकी इच्छा शक्ति है। तो मोदी जी ने विश्व की इस समय के वातावरण को देखते हुए भारत की भूमिका को बढ़ाने के लिए जो जो अनिवार्य थे निर्णय वो लिए। और आज स्थिति ये है कि हमारे जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें पब्लिक और प्राइवेट के बीच की दरार समाप्त हो चुकी है, और नागरिकों में एक तरह का ये आत्मविश्वास जागा है कि अब हमें सबको इकट्ठा मिलकर के इस भारत की विकसित भारत की यात्रा को सिद्धि तक पहुंचाना। सर, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है हमारा डिफेंस सिस्टम जो है वो बहुत ऑगमेंटेड दिखा। इस पे आप मुझे लगता है कि एक तरह का एक अवसर रहा भारत के लिए शो केस करने का कि 10-11 वर्षों की क्या उपलब्धियां हैं। और वो सैनिक या दूसरी सोच रखने वाले लोग जो कभी कभी ये पूछने का दुस्साहस करते थे कि साहब क्या हुआ है, उन्होंने भी देखा। मेरे अपने क्षेत्र में लगभग 2,500 फैमिली बंकर्स बनाए गए गत 7-8 वर्षों में, और इस प्रकार की सुविधा और सुरक्षित सुविधा के वहां जाकर के जो परिवार बसे इस दौरान, वो कहीं और जाने को तैयार ही नहीं थे। और हमने तो अब उनको एक एड्रेस भी दे दिया बकायदा कि अगर लंबी देर तक उन्हें, और अब उन्हीं बंकर्स की जो हीरानगर सेक्टर में आईवी के ऊपर बनाया गया, उसका मिसाल एलओसी और दूसरी जगहों को दिया जाता है, उसकी मांग की जाती है। इसके अतिरिक्त जो आपने देखा ये सारी आधुनिक टेक्नोलॉजी जिस तरह से कि, और इनका मनोबल नागरिक का बढ़ गया। वो कहते हैं साहब ये जंग जारी रहे। वो इसलिए ये मनोबल इसलिए आया कि जब उन्होंने देखा कि इतने सारे इकट्ठे ड्रोन ऊपर हमलावर हुए और एक के बाद उनको ध्वस्त करने की हमारे में क्षमता है, तो आम नागरिक का भी आत्मविश्वास बढ़ा। और ये सारी टेक्नोलॉजी डेवलप और इंडिजिनसली डेवलप आत्मनिर्भर भारत के मंत्र पर अमल करते हुए टीओटीज अगर हुई है, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, वो भी इन 10 वर्षों में हुई है। तो एक तरह की भारत को अपनी क्षमता और आज के युग में अपनी युद्ध के लिए अपनी क्षमता के साथ है, युद्ध के लिए हमारा जो शक्ति है, हमारा बल है, वो आम नागरिक के मन में भी उससे मनोबल बढ़ा और बाकी विश्व को भी उसका एहसास हुआ है। सैटेलाइट्स ने कितना अहम मणिपुरी बिशी डेवलपमेंट जुले आसे कुटे इंडियन रेलवेज एकटा डांगर रोल आसे टेरेन लगा चैलेंजेस फेस करिना भी गाम दो बिशी भाल और स्पीड ब्रा जुले आसे 111 किलोमीटर जिरबा मिम्फाल रेलवे लाइन लगा काम दो प्रोजेक्ट बिशी टनल्स ब्रिजेस और स्टेशंस भी इंक्लूड आसे दुनिया लगा सबसे लंबा रेलवे ब्रिज भी खुदम होबले आसे किंतु एकटा रिमार्केबल इंजीनियरिंग फीट आसे 52 ब्लैंड टनल्स से 61.31 किलोमीटर से 59 किलोमीटर लगा टनल वर्क तो खुदम हुई है इतिया तक। इटागणे मनसे साइड के भी हॉर्नबिल टीवी।